Welcome students. This video lecture is a part of Fluorescent Public School Digital Learning Program. Today we continue our chapter 5th States of Matter. In our previous lecture we talk about ideal gas equation. Ideal gas equation in terms of density and what combined gaseous flow. But today we discuss the uh, important things and topics. These are Dalton's law of partial pressure and kinetic theory of gases, that is KTG. Basically, if we see the Dalton's law of partial pressure, सबसे पहले को दिमाग में आता है who gave this Dalton's law? Obviously, John Dalton gave in 1801, and that is all are about the partial pressure of the gases. That's why it's called Dalton's law of partial pressure. First, I want to discuss the partial pressure term. So basically, the individual pressure of a gas is called partial pressure. Why? We are surrounded by various type of gases like nitrogen, helium, oxygen, etc. So basically, if we see that one atm pressure that we observe at our room temperature is the total pressure exerted by 78% nitrogen, okay, 21% oxygen and 0.03% carbon dioxide and the other gases. So basically, if we see that one atm pressure is the sum of pressure offered by oxygen, nitrogen, helium and some other gases. तो जो इंडिविजुअल प्रेशर है किसका, ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का, जो वन एटीएम में कुछ पार्ट रखता है, लेस देन वन एटीएम है, उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर गैस का खुद का प्रेशर जो वो एक्सर्ट करता है, टोटल नहीं. ओके, तो वन एटीएम जो आपको वो प्रेशर फील होता है रूम टेम्परेचर पर, वो किसी एक गैस की वजह से नहीं होता. वो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, सभी के समझ से होता है. So basically, the definition of this Dalton's law of partial pressure, अगर आपको उसको डिटरमाइन करना है या आपको उसका लॉ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस. ऑब्वियसली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तब अप्लाई होता है जब आप किसी गैसेस का मिक्सचर ले रहे होते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल आर अबाउट द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज द टोटल प्रेशर. और बोला जाए अच्छा गैसेस कैसी होनी चाहिए, वो नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए. ये कंडीशन है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की. द गैसेस व्हिच इज फिल्ड इनसाइड द कंटेनर मस्ट बी नॉन रिएक्टिव. ओके, अपने एटमॉस्फेरिक गैसेस जितनी भी है जो आपके सराउंडिंग में है जिसकी वजह से आपको ऊपर प्रेशर लगता है, दे ऑल आर आल्सो नॉन रिएक्टिव. दैट मींस नाइट्रोजन नेवर रिएक्ट विद ऑक्सीजन. Okay, in that condition. So basically, how we state this law: total pressure exerted by the mixture of non-reactive gases is equal to the sum of partial pressure and more correctly individual pressure of a, yes, individual gases. So basically आपको partial pressure को जोड़ना है, total pressure निकालना है. Suppose there is a nitrogen gas which is shown by a red color bubble, and there is a carbon dioxide gas which is shown by blue color bubbles, and there is a helium gas which is shown by a green color bubble. Then if we have to find the P total, then we have to add the partial pressure of nitrogen, partial pressure of carbon dioxide and partial pressure of helium gas. So this is a overall concept of Dalton's law of partial pressure, but we have mathematical expression also. If you see the basic mathematical expression here, then P total must be P1 plus P2 plus P3. प्लस के आगे बहुत सारी जगह छोड़ी हुई है, इसका मतलब ये है गैसेस तीन या तीन से ज्यादा कितनी भी ले सकते हैं आप, बट कंडीशन ये है कि वो आपस में नॉन रिएक्टिव हो. फिर आप P1 को एक्सटेंड करते हैं. P1 को आप लिख सकते हैं P बराबर एन आर टी अपन वी. N1, क्योंकि देखिए सभी के मोल्स अलग अलग होंगे. नाइट्रोजन कभी ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन थोड़ी कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और कम होगी, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ वेरी करते हैं. आर कभी चेंज नहीं होता. टेम्परेचर जो हाँ एक्सपेरिमेंट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है, तो वो भी कभी चेंज नहीं होगा. और वॉल्यूम वो कंटेनर है जो कि फिक्स है, तो वॉल्यूम भी कभी चेंज नहीं होगा. तो इनको आप एक सच रखें, बट we use abbreviation N1, N2 and N3 for the number of moles.
वेरिएबल यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स होंगे जिनको आप N1 N2 और N3 से आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर बहुत सारी चीजें अगर सेम है तो आप कॉमन ले लेते हैं, तो N1 प्लस N2 प्लस N3 एन डॉट 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 जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है मल्टीप्लाई विद द RT अपॉन V गिव्स P टोटल। बेसिकली फाइनल एक्सप्रेशन जो निकल के आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का कि टोटल प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 RT अपॉन V। दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, देख लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है इस तरीके से, व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर। देखिए यहाँ लिखना भूल गया टोटल प्रेशर, लेकिन बोला है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर है दो गैसेस का, यहाँ पर 3.2 ग्राम मीथेन है एंड 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। डायग्राम में जैसा कि कंटेनर बनाया हुआ है, जो सॉलिड डार्क जो है आपके डॉट्स हैं वो मीथेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होलो जो आपके डॉट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों गैसेस को फिल किया हुआ कंटेनर में, तो टोटल प्रेशर जो होगा ऑब्वियसली दोनों गैसेस एग्जिट कर रही है, दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग है। पी टोटल इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, तो वहां N1 N2 की जगह पर आप लिख सकते हैं N ऑफ मीथेन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं तो मास अपॉन इट्स मोलर मास। मोलर मास CH4 का होता है 16, 16 कहाँ से आया, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, तो 12 प्लस 4 दैट इज 16। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 कैसे आया, कार्बन का लेना है 12, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का लेना है 16, दो का हो गया कितना 32, 32 plus 12 that becomes 44. If you divide this mass with molar mass, then we got number of moles of the methane, obviously 0.2 and 0.1 respectively. And if you put the value of R, and देखिए R जो यहाँ आएगा लीटर ATM पर मोल में आएगा, देखिए मोल यहाँ आया है पर मोल से ये मोल कंप्लीट हो गया, कैंसिल आउट। लीटर से नीचे जो वॉल्यूम दिया हुआ है डेसीमीटर क्यूब, वन डेसीमीटर क्यूब को आप रिप्लेस कर सकते हैं लीटर से, बात एक ही है। लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर से टेम्परेचर यानी कि केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ATM में आएगा। दूसरी खास बात कि यहाँ जो टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल, तो 300 हो जाएगा 273 से आप जब ऐड करेंगे। तो बेसिकली जब आप फाइनली आप इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आपको 0.821 ATM आपको यहाँ पर डाटा ऑब्टेन होगा। So this is all are about the question or numerical based on Dalton's law of partial pressure. Now we go for the important topic of this chapter. KTG बहुत लंबा है, बहुत मैथमेटिकल यहाँ पर क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन यहाँ निकल के आते हैं KTG से। KTG मामूली चीज नहीं है, बट in your syllabus you have only postulate, that's why we talk about it only. Our knowledge is limited to only postulates only. You can see here, first postulate, gases consist of a large number of identical particles. पार्टिकल्स बोला है इसका मतलब एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक्चुअल पोस्टुलेट क्या है कि पार्टिकल की जो साइज है दैट इज टू स्मॉल और नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में जितना गैप है उससे काफी छोटा उनका डायमीटर है। पहला क्वेश्चन समझ में आया। अगर कोई कंटेनर है और उसके अंदर जो पार्टिकल है उसका जो डायमीटर है वो काफी कम है कंपेरेटिवली, कि किससे कंपेरेटिवली कम है कि दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस से कम है। ओके, सेकंड पोस्टुलेट, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का मतलब ये है कि जो गैसेस पार्टिकल है उनके बीच में आपस में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। अच्छा, पोस्टुलेट डिस्कस करने से पहले एक चीज बता दूं, केटीजी के जितने भी पोस्टुलेट्स हैं वो फॉलो करता है आइडियल गैस, और अपनी धरती पर आइडियल जैसी चीज कोई है ही नहीं। केटीजी में बाद में करेक्शन किए जाएंगे। ओके, तो आइडियल गैस इक्वेशन जो आप जनरली यूज कर लेते हैं वेदरडले से, है ना क्वेश्चंस में, तो वो अब नहीं करना है। आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होती है, लेकिन नॉन आइडियल वी आर सराउंडेड विद द नॉन आइडियल गैसेस, तो फिर यहाँ पर अपना आइडियल गैस इक्वेशन फॉर द रियल गैस भी निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। केटीजी के पोस्टुलेट आइडियल गैस के लिए वैलिड है,
ऐसा कभी नहीं होता कि धरती पे जो गैसेस है उनमें आपस में कोई इंटरेक्शन ना हो, देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन देम। ठीक है, तो ये दिमाग में रखें कि कैथी जी के पोस्टुलेट सारे आइडियल गैस के लिए ही वैलिड हैं ओनली। There is no force of attraction between the particles of the gas at ordinary temperature and pressure. Third postulate, particles of a gas are always in a constant and random motion, and they show random motion or zigzag motion. तो हमेशा वो जो है क्या उनके पास कुछ काइनेटिक और एनर्जीज होती हैं, और सभी के पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड की काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड दे शो रैंडम मोशन एंड दे स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड विद द अदर पार्टिकल्स। डी वाला जो आपका बोल रहा है, प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन, द पार्टिकल विल बी वॉल ऑफ द कंटेनर। कहने का मतलब यह है कि गैस जो है जितना भी प्रेशर एग्जर्ट करती है, किस पर, किस पर, कंटेनर वॉल पर, तो वो किसकी वजह से है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। अगर कोई गैस कंटेनर के अंदर क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है, तो किसकी वजह से है, उन कोलिजन्स की वजह से है, क्योंकि पार्टिकल और वॉल ऑफ कंटेनर के बीच में हो रहा है। एक चीज मुझे बताइए, अगर कंटेनर के अंदर कोई गैस भरी हुई है तो उसके अंदर कितने टाइप के कोलिजन्स हो सकते हैं। या तो ये कोलिजन हो सकता है कि पार्टिकल पार्टिकल के साथ टकराए है, या फिर ये हो सकता है कि पार्टिकल कंटेनर की वॉल से टकराए है। तो जो कोलिजन जो जहाँ पार्टिकल और कंटेनर की वॉल के बीच में हो रहे हैं, वो प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, पोस्टुलेट नंबर ई, ये ये जो कोलिजन हो रहे हैं ये परफेक्टली इलास्टिक है। दैट मींस कोलिजन्स व्हिच अकर इन बिटवीन द gaseous molecule or either on the in between the gaseous molecule or to the wall of the container, they must be elastic. Why they are elastic? Elastic collision का मतलब ये होता है कि before and after collision energy of particle will never lose, never undergo loss or lose। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कोलिजन होने चाहिए कि पहले और बाद में कोलिजन के एनर्जी का लॉस रत्ती भर भी ना हो। अगर एनर्जी का लॉस होगा तो पार्टिकल एक समय के बाद सेटल हो सकते हैं बॉटम पर, ऐसा कभी नहीं होता है। मैं आपके पास एक कंटेनर है मान लीजिए, या फिर एक डब्बी है, उसके अंदर हवा भर दिया आपने, उसके कोई कंटेनर लिया आपने, प्लास्टिक का बोतल लिया, उसके अंदर ऑक्सीजन भर के रख दी 1 ईयर के लिए। अब आप ये सोचिए, क्या वो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स क्या सेटल हो जाएंगे बॉटम पर? दैट विल नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब ये है कि रियल गैस जब बॉटम पे सेटल नहीं होती 1 साल के अंदर, तो आइडियल गैस तो नामुमकिन है, क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। सेटल तभी होंगे जब उनके पार्टिकल्स की एनर्जी जो है वो क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए, तब जाके वो सेटल होंगे। तो ऐसा इलास्टिक कोलिजन है तो ऑब्वियसली एनर्जी कम होने के कोई चांसेस नहीं है कोलिजन से, है ना। एफ पॉइंट, at any particular time different particle in a gas have different speeds। स्पीड का मतलब स्पीड भी बोल सकते हैं आप, काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। स्पीड अलग होगी तो ऑब्वियसली फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। मास तो उनका सेम ही है, बट वॉल्यूम जो है, वेलोसिटी जो है यानी कि स्पीड जो है अलग अलग है। जब ये अलग अलग होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट डिफरेंट होगी, मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ। सेकंड थिंग, these particles यानी gaseous particles are independent from the gravitational force of acceleration। यानी कि उनके ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। वो पॉइंट यहाँ नहीं लिखा हुआ है, पर आप वो भी देख सकते हैं किसी बुक्स में, अदर बुक्स में, कि दे the gaseous particle will never suffer from the gravity or gravitational acceleration force। ओके जी, देखिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द gaseous particle or molecule is directly proportional to absolute temperature। obviously as we know the kinetic energy is a function of temperature। kinetic energy temperature पे डिपेंड करता है। फंक्शन का मतलब kinetic energy is a function of temperature, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। काइनेटिक एनर्जी है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो इंक्रीजेस, एंड इफ यू डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, नॉट अ काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, देन काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीजेस। समझ आ गया। मैंने जो पोस्टुलेट डिस्कस किए हैं इसमें एक और पोस्टुलेट लिखना है। वो क्या लिखना है कि गैसेस पार्टिकल आर नेवर अफेक्टेड बाय ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये और ऐड कर देना है इसमें, जिससे आपके कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, 8 पॉइंट आपके हो जाएंगे। And in examination you have to write only 3 or 4,
बेसिकली केटीजी समझ में आया होगा आशा करता हूँ, है ना। और केटीजी जो है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द आइडियल केसेस ओनली। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए ये बातें काफ़ी ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर की डिपेंडेंस वाला, है ना। सपोज एक बलून जिसमें गैस भरी हुई है, आप गैस से फिल कर लें उसे, और उस बलून जो बिल्कुल जिसके अंदर गैस भरी हुई है, अगर आप उसके ऊपर क्या डालते हैं, फिर फॉर लिक्विड नाइट्रोजन, आप लिक्विड नाइट्रोजन उसके ऊपर जब पोर करते हैं तो बलून जो है उसमें से बलून बिल्कुल पिचक जाएगा, बॉटम पर सेटल हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे आप उसे उठाकर 2 बार ऐसे शेक करेंगे, वापस वो जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जाइज हो जाते हैं और वापस बलून अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आपको जो है यूट्यूब पे भी मिल सकता है, उसका नाम ऐसे होगा, आपको ये टाइप करना होगा, एक्सपेरिमेंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन विद बलून, तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा। तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि लिक्विड नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर की माइनस में होता है, -196 के अप्रोक्स होता है, या -160 होता है, तो वो लिक्विड नाइट्रोजन क्या करता है, इतना कम टेम्परेचर पर वो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी काइनेटिक एनर्जी को बहुत कम कर देता है। उससे होगा क्या, बलून पिचक जाएगा पूरा। जैसे आप उसे 2 बार शेक करते हैं, उससे वापस गैसेस पार्टिकल अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आ जाते हैं और उसकी वजह से वापस बलून वैसा का वैसा पहले जैसा हो जाता है। तो आप लिक्विड नाइट्रोजन के एक्सपेरिमेंट आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने में और हेल्प करेगी टॉपिक को। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं। स्टेट Dalton's law of partial pressure, you can easily give the answer of that question. Second is write any four postulate, मैंने तो आपको 8 पढ़ा है। Third question, what do you understand from the partial pressure? The individual pressure offered by any gas is called partial pressure. So this is all about today lecture. I hope you enjoy this lecture and have a nice day.